वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे। क्लास 11th की एनसीईआरटी से आप ये ओपन कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया काइनेमैटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायनामिक्स, जिसमें फोर्स यानी कोरिस्पॉन्डिंग क्वांटिटी टॉर्क की हम बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की बात करेंगे, वर्क पावर इन सब की बात हम करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। So let's discuss about rotational motion along with its cause, यानी कारण के साथ। तो रोटेशनल मोशन का जो कारण होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे डायनामिक्स में। टेबल 7.2 lists quantities associated with linear motion and their analogs in rotational motion। तो एक बार टेबल 7.2 पे नजर मार लेते हैं हम। टेबल 7.2 में ये सारी क्वांटिटीज जो हैं अरेंज्ड हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हियर इज टेबल 7.2। लीनियर मोशन में जो रोल होता है डिस्प्लेसमेंट का, रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा से दिखाते हैं। लीनियर मोशन में वेलोसिटी v dx by dt होता है, रोटेशनल में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा d थीटा by dt। एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv by dt, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से दिखाते हैं d ओमेगा by dt। जो रोल मास का m का होता है वही रोल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का। फोर्स F इक्वल टू ma, टॉर्क टॉ इक्वल टू I अल्फा, वर्क dw इक्वल टू m ds। वर्क रोटेशनल मोशन में टॉ डी थीटा, अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, टॉर्क वेरिएबल है तो इंटीग्रेट कर लेते हैं टोटल निकालने के लिए। काइनेटिक एनर्जी के हाफ एम वी स्क्वायर, इधर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पावर एफ डॉट वी या एफ वी इधर, अगर थीटा जीरो है तो इधर जो है टॉ डॉट ओमेगा, अदरवाइज टॉ ओमेगा। तो टॉ ओमेगा क्यों लिखा गया है, एफ वी क्यों लिखा गया है, क्योंकि रोटेशन में अगर हम बात करें तो जितने भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं ऑल ऑफ दीज आर डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इनकी सबकी डायरेक्शन सेम होती है, तो इनके बीच एंगल 0 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा लिखा है। लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू mv, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू I ओमेगा। तो ये थी टेबल 7.2 जिसमें हमने रोटेशनल एनालॉग देखे। Also we know that in rotational motion moment of inertia and torque play the same role as mass and force respectively in linear motion. Given this, we should be able to guess what the other analogs indicated in the table are. For example, we know that in linear motion work done is given by F dx. In rotational motion about a fixed axis it should be tau d theta. Since we already know the correspondence dx correspond to d theta and F corresponds to tau, it is however necessary that these correspondences, जो संगत राशियां हैं, भौतिक राशियां संगत corresponding, are established on sound dynamical considerations. This is what we now turn to. Before we begin, we note a simplification that arises in the case of rotational motion about a fixed axis. वो क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं एक्सिस जो फिक्स्ड है, since the axis is fixed, only those components of torques which are along the direction of the fixed axis need to be considered in our discussion. Only these components can cause the body to rotate about the axis. बाकी सब components की बात हम नहीं करेंगे। A component of the torque perpendicular to the axis of rotation will tend to turn the axis from its position. वो क्या करेगा फिर बच्चों, वो तो precessional motion की तरफ ले जाएगा। We specifically assume that there will arise necessary forces of constraint to cancel the effect of the perpendicular components of the external torques, so that the fixed position of the axis will be maintained. तो ये assumption है इस पूरे discussion में कि axis जो है वो fixed रहने वाला है। The perpendicular components of the torques therefore need not be taken into account. This means that for our calculation of torques on a rigid body, we need to consider only those forces that lie in planes perpendicular to the axis. ठीक है, सिर्फ वही लेने। Forces which are parallel to the axis will give torques perpendicular to the axis and need not be taken into account. फोर्स इधर है तो उसका टॉर्क जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, r क्रॉस f आप जानते हैं। We need to consider only those components of the position vectors which are perpendicular to the axis
Components of position vectors along the axis will result in torques perpendicular to the axis and need not be taken into account. तो ये R अगर परपेंडिकुलर है तो भी ऐसा ही होगा, क्योंकि साइन 91 होता है तो R क्रॉस F जो है वो थीटा अगर 0 हो गया है 180 हो गया तो दोनों केस में ये कैंसिल होने वाला है. वर्क डन बाय ए टॉर्क. तो x डैश y डैश ये एक्सेस लिया हमने. एंगल थीटा पर ये कोई पार्टिकल है जिसकी पोजीशन है P1, जहां से इसको घुमाया जाता है फोर्स F1 लगाकर पोजीशन P1 डैश पे आ जाता है. तो यहां पर ये कुछ एंगल्स है, अल्फा 1 है, फाई 1 है, तो इन सब की बात हम करते हैं यहाँ पे. वर्क डन बाय फोर्स F1 एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ ए बॉडी rotating about a fixed axis. The particle describes a circular path with center C on the axis. Arc P1 P1 dash ds1 जिसका साइज है यानी आर्क लेंथ है, gives the displacement of the particle. Figure 7.34 shows a cross section of a rigid body rotating about a fixed axis. तो उसका डायग्राम साथ में हम देख पाए उसके लिए हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं. तो इसको मैंने कॉपी किया और कैनवास को क्लियर कर देते हैं. पहले यहां मैं पेस्ट कर देता हूं. तो ये डायग्राम हमारे पास आ गया. इसके रेफरेंस में हम बात कर सकते हैं. फिगर 7.34 जैसा आप यहां देख रहे हैं शोज क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस विच इज टेकन एज द z एक्सिस. z एक्सिस यानी जो बाहर की तरफ आ रहा है ना, x डैश y डैश इधर बाहर की तरफ आ रहा है वो z एक्सिस है. जिसमें नहीं दिखाया गया है इधर बाहर की तरफ आ रहा है, दैट इज z एक्सिस, और उसके अबाउट ये घूम रही बॉडी. परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेज, सी फिगर 7.33 है ना. 7.33 में देखेंगे तो वो हमें क्लियर होगा. सो वेयर इज फिगर 7.33, उसको भी देख लेते हैं. इससे पहले है 7.33 z एक्सिस, जैसे इसके अबाउट ये घूम रहा था वैसे. ठीक है बच्चों. As said above, we need to consider only those forces which lie in planes perpendicular to the axis. सिर्फ वही forces लेने. Let F1 be one such typical force acting as shown on a particle of the body at P1. ये force F1 काम कर रहा है. With its line of action in a plane perpendicular to the axis. ये इसकी line of action जो है x dash y dash के perpendicular है. For convenience, we call this to be the x dash y dash plane, coincident with the plane of the page. The particle at P1 describes a circular path of radius r1 with center C on the axis. CP1 is r1. C से लेकर P1 तक के डिस्टेंस वो r1 है. In time delta t, the point moves to the position P1 dash. यहाँ पहुंच जाता है. The displacement of the particle ds1 therefore has magnitude ds1 कितना हो गया, arc equal to angle upon radius. ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया बच्चों, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो यहां से अगर देखा जाए तो आर्क हो जाता है एंगल इंटू रेडियस. तो ये हो गया एंगल डी थीटा इंटू रेडियस r1 एंड डायरेक्शन टेंजेंशियल एट P1 to the circular path as shown. Here d theta is the angular displacement of the particle. D theta is angle P1C P1 dash d theta. The work done by the force on the particle is dw1 f1 dot ds1. ये वेक्टर है बच्चों, जहां पर ये बोल्ड लेटर्स हैं ये वेक्टर है, और जब हमने इसको ओपन किया तो cos थीटा एंगल आएगा. तो f1 ds1 cos phi 1. यहाँ पर F1 और ds1 के बीच जो एंगल है वो है phi 1, जैसे कि हम देख पा रहे हैं.
So this angle is phi 1. अब phi 1 तो कितना है हम जानते हैं, और क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, कौन सा वाला, डी थीटा वाला बहुत छोटा है, तो अब देखिए F1 ऐसा कैसा आ गया, और DS1 की जगह हमने क्या लिखा है, DS1 की जगह हमने लिखा है DS1 cos phi 1 बराबर होगा R1 d थीटा। R1 d थीटा क्या था, ये रहा, DS1 की जगह हमने क्या लिख दिया, R1 d थीटा, और cos phi 1 की जगह लिखा है sin अल्फा 1। cos phi 1 की जगह sin अल्फा 1, वो कंपोनेंट ले लिया हमने, फोर्स का कंपोनेंट ले लिया जो कि परपेंडिकुलर है, where phi 1 is the angle between F1 and the tangent at P1 and alpha 1 is the angle between F1 and the radius vector OP1। तो phi 1 plus alpha 1 is 90 डिग्री, तो 90 माइनस phi 1 लिखेंगे तो sin अल्फा हो जाएगा, ठीक है। cos phi 1 को 90 माइनस ऐसा करके लिख सकते हैं। The torque due to F1 about the origin is OP1 cross F1। OP1, O तो यहां पर है नहीं बच्चों, सो O तो कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है, अगर हम C को O माने, OP1 इक्वल टू OC प्लस OP1, OC प्लस OP1। पॉइंट O यहां पर नहीं दिख रहा है, इसको देख लेते हैं कहां है, P1 एंड अल्फा 1, एंगल बिटवीन F1 एंड द रेडियस वेक्टर OP1, रेडियस वेक्टर OP1, ये C को ही लिख दिया है। Torque due to F1 about the origin is OP1 cross F1, CP1 cross F1, इसको एक्सटेंड करें तो ये भी ले सकते हैं हम। Now OP1 is OC plus OP1, OC plus OP1। कुछ मिसप्रिंट है, रेफर टू फिगर 7.17b, तो इस फिगर की जगह हमें 7.17b पर जाना पड़ेगा बच्चों। लेट्स गो टू 7.17b, इस पे चलते हैं। सो हियर इज द फिगर 7.17b, ये वाली फिगर है बच्चों, पीछे के पेजेस में है, तो यहां इसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। टॉर्क ड्यू टू F1, F की जगह यहाँ पे फोर्स जैसे था, तो OP1 जो है ये रहा, OP की जगह OP मान लीजिए, OP1 की जगह OP1 इज OC, OC प्लस OP1 इज OC प्लस OP1, इधर भी OP1 लिखा है, इधर भी OP1 लिखा है, सो इट इज मिसप्रिंट। एक्चुअली इसमें ट्राइंगल लॉ लगाया बच्चों, ठीक है, ट्राइंगल लॉ लगाकर इसकी वैल्यू निकाली यहाँ पे, 3D में ले रहे हैं इसको हम, ये यहां से यहां जाएगा फिर वहां जाएगा, तो 3D में ले रहे हैं इसको, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। सिंस OC इज along the axis, the torque resulting from it is excluded from our consideration। The effective torque due to F1 is tau1, जो कि CP क्रॉस F1 के बराबर है। CP, P is not here, CP क्रॉस F1, CP को हम एक्सटेंडेड मान सकते हैं, वो CP1 की बात कर रहे हैं। It is directed along the axis of rotation, सब होगा along the axis of rotation, and has magnitude, magnitude कितना हो जाएगा, R1 F1 sin अल्फा 1। कंपोनेंट लिया हमने, क्रॉस प्रोडक्ट ओपन किया, इसलिए दोनों के बीच का एंगल जो है ये अल्फा 1 है। तो अगर मैं आपको लिखकर बताऊं बच्चों, इसी पॉइंट को P मान रहे हैं और एक्सटेंड करें तो हम along the line of action इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको भी मैं P लिख सकता हूं, CP। तो CP
और ये F1, इनके बीच का एंगल है अल्फा 1, इसलिए यहां पर आ गया है F1 sin अल्फा 1। तो dw1 कितना हुआ, tau 1 d थीटा हुआ। इफ देर आर मोर देन वन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, अभी तो यहाँ खाली एक ही फोर्स है, the work done by all of them can be added to give the total work done on the body, denoting the magnitudes of the torques due to the different forces as tau 1, tau 2, etc. तो dw हो गया इन सबका summation. Remember the forces giving rise to the torques act on different particles, but the angular displacement d theta is the same for all particles. Angular motion की खास बात है, since all the torques considered are parallel to the fixed axis, the magnitude of the total torque is just the algebraic sum of the magnitudes of individual torques. तो dw हो गया tau d theta. This expression gives the work done, जहाँ पे tau क्या है, सारे torques का sum, by the total external torque which acts on the body rotating about a fixed axis. Its similarity with the corresponding expression dw equal to fds for linear translation motion is obvious. और जो छोटी सी बात है समझने की, इस डिस्कशन की मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी में आपको नहीं फंसना है। यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं रही क्योंकि नोटेशन थोड़े डिफरेंट हो गए जो दिए हुए हैं उससे। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि जैसे r क्रॉस f होता है, टॉ होता है, और टॉ और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा, उसके बीच का एंगल, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, अगर बीच का एंगल 0 होगा तभी बात बनेगी, cos 0 is 1। अगर वो 90 वाला पार्ट है तो बात नहीं बनेगी क्योंकि क्वांटिटी 0 हो जाएगी cos 90 होते ही। तो हमें वही कंपोनेंट लेना होगा, या तो f का कंपोनेंट लें या तो r1 का कंपोनेंट लें। तो यही बात यहाँ पे समझाई गई है। इससे आगे की बात करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय dt। अब हम क्या पावर का रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, तो उसको डिवाइड कर देता दोनों साइड dt से। तो इधर आ गया dw by dt, और dw by dt जो है पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम, और इधर आ गया टॉ d थीटा by dt। तो d थीटा by dt को हम ओमेगा लिख देंगे, तो रिलेशन आ गया p इक्वल टू टॉ ओमेगा। तो जब आपसे कहा जाए डिराइव p इक्वल टू टॉ ओमेगा, तो ये 2-3 स्टेप का छोटा सा डेरिवेशन है। दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर। बच्चों जब आप चैप्टर एसी पढ़ते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, वहां इंस्टेंटेनियस वैल्यू समझ में आती है। मैकेनिक्स में पढ़ के आए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर है। कंपेयर दिस एक्सप्रेशन फॉर पावर इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस विद द एक्सप्रेशन फॉर पावर इन केस ऑफ लीनियर मोशन जो था Fv। इन ए परफेक्टली रिजिड बॉडी देयर इज नो इंटरनल मोशन, अंदर कोई मोशन नहीं हो रहा है, रिजिड बॉडी है ना, तो पार्टिकल आपस में तो उनके बीच की जगह बदल नहीं सकती, उनकी पोजीशन अनचेंज्ड है। The work done by external torques is therefore not dissipated and goes on to increase the kinetic energy of the body। जैसे हमने पढ़ा था लीनियर मोशन में, बोगी के अंदर से, यानी रेलवे ट्रेन का जो डब्बा है उसके अंदर से लोग धक्का लगाना चाहें तो ट्रेन को खिसका नहीं सकते। तो यहाँ इंटरनल टॉर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा सकते बॉडी की। The rate at which work is done on the body is given by equation 7.42। ये हो गई पावर, जिसको हम बोलते हैं rate of work done। This is to be equated to the rate at which kinetic energy increases। The rate of increase of kinetic energy is, तो लिखने का तरीका ये हो जाएगा बच्चों, d by dt of half I omega square। ये हो गया रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसको हम कैलकुलेट करते हैं अगर, तो I कांस्टेंट बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशियल 2 ओमेगा बाय 2 कट गया, बाकी बचा d ओमेगा बाय dt, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। We assume that the moment of inertia does not change with time। This means that the mass of the body does not change, इसलिए moment of inertia भी चेंज नहीं हो रहा है, और एक्सिस फिक्स्ड है। एक्सिस अगर चेंज होता तो भी चेंज हो जाता। The body remains rigid and also the axis does not change its position with respect to the body। Since alpha is d omega by dt, तो इसकी जगह हम अल्फा लिख सकते हैं। We get d by dt of I omega square by 2 is I into, यहाँ ओमेगा बचा, यहाँ आ गया अल्फा, equating rates of work done and of increase in kinetic energy। तो टॉ ओमेगा को आई ओमेगा अल्फा से इक्वेट कर दिया जाए, ओमेगा कट के हमारे पास रिलेशन टॉ इक्वल टू आई अल्फा। तो आपको बोला जाए टॉ इक्वल टू आई अल्फा प्रूव करो, तो ये भी एक तरीका है टॉ इक्वल टू आई अल्फा प्रूव करने का। इक्वेशन 7.43 इज सिमिलर टू न्यूटन सेकंड लॉ फॉर लीनियर मोशन एक्सप्रेस सिंबॉलिकली एज F इक्वल टू ma। Just as force produces acceleration, torque produces angular acceleration in a body। The angular acceleration is directly proportional to the applied torque and is inversely proportional to the moment of inertia of the body।
can be called Newton's second law for rotation about a fixed axis. तो आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन बनाकर पूछ सकते हैं, Which of the following can be called Newton's second law of rotation about fixed axis? एक बार तो आप घूम जाएंगे, फिर आप अगर घबराए नहीं वहां पर, एकदम सहज हैं एग्जाम के टाइम पर, तो फिर दिमाग आपका चलना शुरू करेगा, आप एनालॉग सिमेट्री से सोचेंगे तो जवाब आपको मिल जाएगा, टॉ इक्वल टू आई अल्फा से लिंक्ड इक्वेशन दिमाग में क्लिक करेगी। एग्जाम्पल 7.15 देखते बच्चों, कॉर्ड यानी रस्सी है कोई ऑफ नेग्लिजिबल मास, उसका मास नेग्लेक्ट कर दिया, वॉन्ड राउंड द रिम ऑफ ए फ्लाईव्हील, बड़ा सा चक्का है उसके चारों तरफ लपेट दिया उसको हमने, जिसका मास 20 kg है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, स्टेडी पुल अब खींच रहे हैं 25 न्यूटन से, इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड एज शोन इन फिगर 7.35, द फ्लाईव्हील इज माउंटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्सल होता है बताओ लॉन्ग शाफ्ट, लंबा सा शाफ्ट उसको बोलता है एक्सल, विथ फ्रिक्शनलेस बियरिंग्स यानी वहां फ्रिक्शन नहीं है, कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलेरेशन, ये सिचुएशन है, रस्सी यहां से खींच रहे हैं, ये घूमेगा, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ कॉर्ड इज अनवाउंड, 2 मीटर खींचो के कितना वर्क हुआ, जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकालते थे, या टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे। फाइंड आल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट, जब खींच रहे हैं ये घूमना शुरू करेगा तो ये मोशन में आ जाएगा। आपने देखा होगा बच्चों को टेम्पो स्टार्ट करते हैं ना, तो कई बार बैटरी सही नहीं होती टेम्पो की, तो कैसे स्टार्ट करते हैं, उनके पास एक रस्सा रखते हैं, आगे का बोनट खोलते हैं, आगे फ्लाईव्हील होता है, उसमें रस्से को पकड़ के घुमाते हैं और एक झटके से खींचते हैं, वो गोल गोल घूमना शुरू हो, इंजन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने गौर किया हो, ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रॉन्ग है। फाइंड आल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट, अज्यूम दैट द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हमें निकालना है। कंपेयर आंसर्स टू पार्ट बी एंड सी, उनके आंसर्स को कंपेयर करना। सो लेट्स सी, 20 kg मास, 20 सेंटीमीटर रेडियस, फोर्स लगाया 25 न्यूटन, हमें पता है टॉ इक्वल टू आई अल्फा और टॉ एफ इनटू आर भी होता है, तो एफ हमारे पास है 25 न्यूटन, आर है 0.20, 20 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदला, तो हमें मिलता है 5 न्यूटन मीटर, तो टॉर्क लग रहा है 5 न्यूटन मीटर, इसको हम आई अल्फा से इक्वेट कर सकते हैं। व्हील जो है डिस्क मानेंगे इसको बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील अबाउट इट्स एक्सिस, तो अबाउट इट्स ओन एक्सिस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाय 2, इट इज mr स्क्वायर बाय 2, m की वैल्यू 20, r स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर अपॉन 2, 0.4 kg मीटर स्क्वायर, यहां से हम अल्फा निकाल लेंगे, तो अल्फा हो गया टॉ अपॉन आई, तो टॉ 5 न्यूटन मीटर को 0.4 से डिवाइड किया 12.35 पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, पर सेकंड स्क्वायर भी। वर्क डन बाय द पुल अनवाइंडिंग 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड, तो वर्क कितना हुआ, टॉ इंटू थीटा 2 मीटर, 25 न्यूटन इंटू 2 मीटर 50 जूल। ये हमने लीनियर मोशन से निकाले, लीनियर फोर्स है, फोर्स इंटू दिस इज नॉट टॉर्क, दिस इज फोर्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्ड, उससे निकला 50 जूल। माना कि ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, द काइनेटिक एनर्जी गेट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर सिंस द व्हील रोटेट्स फ्रॉम रेस्ट। नाउ हमने लगाई इक्वेशन ऑफ मोशन, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ओमेगा 0 रेस्ट से स्टार्ट हुआ था तो 0 हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा निकल के आएगा, लेंथ ऑफ द अनवाउंड स्ट्रिंग, रेडियस ऑफ द व्हील, कैसे 2 मीटर घुमाया हमने, 2 मीटर सीधी चली रस्सी, और सरकमफ्रेंस आपको पता है क्या होगी उसकी, तो कितना एंगल हुआ 10 रेडियन, कैसे, अनवाउंड स्ट्रिंग अपॉन रेडियस ऑफ द व्हील, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, आर्क अनवाउंड स्ट्रिंग अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, और भी कई तरीके से निकाल सकते हैं दूसरे तरीके से भी, पर यहाँ सीधे हमने आर्क अपॉन रेडियस लगाया। ओमेगा स्क्वायर यहां से निकल के आता है 2 इंटू 12.5 इंटू 10, क्योंकि 2 दूसरी साइड चला जाएगा बच्चों, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 250 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 50 जूल, एग्जैक्टली सेम जिसे हमें कंपेयर करना था। The answers are the same, that is kinetic energy gained by the wheel equal to work done by the force. There is no loss of energy due to friction, क्योंकि पहले से ही कहा गया था कहीं पर फ्रिक्शन है नहीं, बॉल बीयरिंग्स वहां पे लगे हुए, तो आप समझ गए होंगे। तो बच्चों ये हमने स्टडी किया डायनामिक्स, इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल होता है। तो मिलते हैं, टिल देन हैप्पी लर्निंग।